Hello everyone, welcome to Adyan Circle. This video is for class 9th physics and the chapter name is motion. In this video I will cover the topic physical quantity, definition, how to represent the physical quantities, types of physical quantities and further classification of physical quantities as per the direction. So let's start. First of all, definition of physical quantities. Any quantities which can be measured is called physical quantities, or in other words we can write any measurable quantity is called physical quantity. Any measurable quantity is called physical quantity. How can we represent any physical quantity? Suppose this is a marker, we can find the length of this marker, we can measure the length of this marker. So length is a physical quantities. We can find the area, volume, and any other quantities which can be measured are called measurable quantities or physical quantities. So length example लेके चलते हैं. Length, suppose length of this marker is 150 centimeter. So length L is a physical quantity. ये क्या हो गई आपकी physical quantity हो गई. And 150 ये numerical value है. कैसी value है? Numerical. So this is called magnitude or numerical value. Centimeter magnitude, and centimeter, this is a unit. So any physical quantity is called measurable quantities, or it can be represented as the product of magnitude and unit. Okay, next, classification of physical quantity, or we can say type of physical quantities. So there are two types of physical quantities. One is fundamental and other one is derived quantity. Fundamental quantities are the basic quantities which are independent to each other. They are not dependent to other quantities, they are independent. So such type of quantities are called fundamental quantities. There are 7 type of fundamental quantities और उनके नेम क्या है? नेम हम लिख लेते हैं. There are 7 type of fundamental quantities जो कि length and mass, then time, then temperature, current, amount of material, amount short में लिख देते हैं, amount of material or substance, amount of substance, and luminous intensity. Length, mass, time, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. These are the basic quantities, or you can say that these are the fundamental quantities. And derived quantities, as per the name, derived quantities can be derived by using of fundamental quantities. Just like speed is a derived quantity, because this is not fundamental. This can the formula of speed is equal to distance upon time. So speed is derived from fundamental quantity, distance and time. So we can write some derived quantities like speed, volume, area, force, pressure, and many quantities we can derive with the help of fundamental quantities. Next, these all quantities, fundamental quantities or derived quantities, these quantities can further classify as per the direction. So there are two types of quantities. There are physical quantities, there are two types of physical quantities as per the direction. One is scalar quantity and the other one is vector quantities. One is scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude, जिसमें केवल magnitude होगा. केवल मैग्नीट्यूड. अब ये नहीं है कि उसकी यूनिट नहीं होगी, आप यहाँ कि मैग्नीट्यूड होगा यूनिट नहीं होगी. मैग्नीट्यूड होगा मतलब बस न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगा. तो ऐसी क्वांटिटीज हमारी कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज. सो द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड
magnitude. The quantities which have only magnitude are called scalar quantities. And the vector quantities, the quantities which have magnitude as well as direction, means इनमें दोनों होता है, magnitude भी होता है और direction भी होता है. The quantities which have magnitude as well as direction means इसमें दोनों ही चीज होती हैं. Direction, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. अब मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज लिखूंगी और वन बाय वन उनको हम क्लासिफाई करेंगे एज पर द स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज. तो यहाँ कुछ मैंने क्वांटिटीज लिखी हैं, जैसे डिस्टेंस लिखते हैं, है ना, और स्पीड, वेट, मास, एनर्जी, और लिख लेते हैं फोर्स, प्रेशर, फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी. ओके, दैट्स एनफ. वन बाय वन we will discuss these quantities. First is distance. डिस्टेंस इज अ स्केलर और वेक्टर. कैसे डिसाइड करेंगे कि स्केलर है, इट मीन्स इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और अगर वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा. तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं. सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज 2 किलोमीटर. फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर. सो 2 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड. उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 2 किलोमीटर. बट अगर आप डिस्टेंस A से B तक की मेजर करो या B से A तक की, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. A और B को अगर आपका A इज सपोज A एट पॉइंट A, this is your house and this is your school. So what is the distance of your school and house? तो it doesn't mean कि आप स्कूल से हाउस तक का डिस्टेंस मेजर करो या हाउस से स्कूल का, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसमें डायरेक्शन जैसी कोई भी बात नहीं है. तो इस टाइप की क्वांटिटी होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. तो ये हम इस कैटेगरी में जाएगी, स्केलर, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. दूसरा स्पीड. स्पीड इज ए ड्राइव क्वांटिटी एंड द फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ना तो डिस्टेंस में डायरेक्शन होता और ना ही टाइम में डायरेक्शन होता. तो ये स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई हमारी? ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई. कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. वेट. वेट की बात कर लेते हैं. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ वर्क करता है? डाउनवर्ड, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ पुल करती है एवरी ऑब्जेक्ट को. अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगता है. तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का कहाँ वर्क करता है? डाउनवर्ड वर्क करता है. तो यहाँ पर डायरेक्शन होता है भी, मैग्नीट्यूड जो भी होगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो भी होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन उसके साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी है. तो ये हमारी कैटेगरी में आ गई, वेक्टर कैटेगरी में. ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई. नेक्स्ट मास. मास द अमाउंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, विच इज यूज टू फॉर्म एनी ऑब्जेक्ट्स. किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जितना मटेरियल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द मास. तो यहाँ डायरेक्शन जैसी कोई बात नहीं आई है. अमाउंट ऑफ मटेरियल, इसमें डायरेक्शन जैसी कोई बात नहीं है. तो ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर. एनर्जी. एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती हैं, मस्कुलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. तो एनर्जी में यहाँ पर हमारी कोई डायरेक्शन जैसी बात नहीं है, सिर्फ उसका अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड होता है. तो एनर्जी भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई. अब हम बात करते हैं फोर्स की. फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स की जब भी हम बात करेंगे तो हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी. विदाउट डायरेक्शन हम फोर्स को डिफाइन नहीं कर सकते. सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, this is an object and we want to push this object in this direction, push away from us. तो push करने के लिए we have to apply some force in this direction. ठीक है, डायरेक्शन मेंशन करना जरूरी है, इन्वॉल्व है डायरेक्शन इसमें, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. वी वांट टू, इफ वी वांट टू पुल दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अस,
तो क्या करेंगे, हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स की जब भी बात हो रही है तो डायरेक्शन हमारा क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई होता है। और एरिया, एरिया कैसी क्वांटिटी हमारी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन जो प्रेशर है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। आप नेल को हैमर हैमर को, अगर नेल आपको वॉल में एम्बेड करनी है तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो नेल जो है वॉल पर क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रेशर भी कैसी क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है, राइट। डेंसिटी, डेंसिटी हमारी कैसी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन जैसी बात नहीं है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पे ना तो मास वेक्टर क्वांटिटी है और ना वॉल्यूम, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। हमारी डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी हैं फिजिक्स में, जिनके बारे में हम अब इजीली, नाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट द गिवन क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी एज पर द एनालाइज by the help of the thinking of direction and magnitude. Okay, so this is all about this video. In our next video we will discuss some more quantities like velocity, acceleration and displacement. And you know, these all three quantities are the vector quantity. Velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity, and displacement is also a vector quantity. But we will discuss these quantities in my next video. So thanks for watching. Till then, bye bye.